أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر وانتم ہو تم مسلمون، فرما بردار، وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم تفرقہ ڈالو، وَاذْكُرُوا، اور تم ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احسان کا، علیکم اپنے اوپر، اس جب کن تم تھے تم اعداءً دشمن، فَأَلَّفَ، پس محبت ڈال دی، پس الفت ڈال دی اس نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہوگے، بِنِعْمَتِہِ، اس کی نعمت سے، اخواناً، بائی بائی، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا، اوپر کنارے کے، حفرتن، گڑھے کے، من الناری، آگ کے گڑھے کے کنارے، فَأَنْقَذَكُمْ، پس بچا لیا اس نے تم کو، منہا، اس سے، فَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لَکُم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ جو ہم نے پیچھے سبق پڑھا تھا اس میں مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر ان کے دعووں سے، ان کے پراپوگنڈے سے بچتے رہو، اس کا اہتمام رکھو۔ اور یہ والی جو دو آیات ہیں، ان میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط اور ناقابل تکثیر بنانے کے دو اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، اول تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی پہلے خود تقوی اختیار کرو، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو کیا تھامنا، اللہ کی رسی کو تھامنا، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی شریعت ہے، کہ اس کو تمام لوگ جو ہے اس پر مکمل انداز سے مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے احکامات کو پر مضبوطی سے پیرا عمل ہو جاؤ، ولا تفرقوا، اور آپس میں اس میں تو فرقہ نہ ڈالو، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں نہ پڑو، واذکروا نعمت اللہ، دوسری چیز اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر یہ احسان کیا، اس کن تم آدان، کہ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان جو ہے وہ محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بائی بائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کا جو گڑھا ہے اس کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا، وَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی پہلا چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اس کو تقوی اختیار کرو، دوسرا آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو، اور تفریق اور اختلافات سے بچتے رہو، ان جو تفریق ہے، اختلافات ہے، یہ تمہاری طاقت کو بالکل ختم کر دے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرمایا اور تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں کہ اول تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھامنا یہ کہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، سینے لگاؤ، چومو، وہ ایک ادب ہے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اچھے طریقے سے پیرا عمل ہو اور نہ اتفاقی سے بچو۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے احکام اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور تین چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، بے ضرورت کیلو کال، بحث و مباحثہ، بغیر ضرورت کے ایویں بولنا، ایسے ہی باتیں کرنا، کیلو کال کو بہت زیادہ باتیں کرنا، بحث و مباحثہ کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے اہم جو ہمارے آج کل ہماری عوام میں بڑا ہی اہم ہے، نہ قرآن مجید پڑھا اس نے ترجمہ تفاسیر کے ساتھ، یا اس نے پڑھا بھی تو چند ایک دو سال لگائے، جی چلو جی، جب ایک دو سال میں آپ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے تو قرآن مجید جو سمندروں سے بھی گہرا علم رکھے ہوئے ہیں
कि पूरे समंदर स्याही बन जाए दुनिया के, तो और कलमे जो हैं वो दरख्त जो हैं वो कलमे बन जाएं और तफसीर लिखने लगे कुरान मजीद की, लिख नहीं सकते। इसी तरह 7 मरतबा दरिया खुश्क हो जाए, स्याही खत्म हो जाए, फिर दोबारा स्याही बने, फिर वो लिख लिख के कलमे खुश्क हो जाए, फिर दोबारा स्याही बने, 7 मरतबा भी ऐसे करें तब भी नहीं लिख सकते। तो इसमें हर कोई कहता है कि मैं ज्यादा मुफस्सर हूँ जी, मुझे ज्यादा पता है, बहस और मुबाहसे में पड़ जाते हैं। दूसरी बात सियासत का ना सही, इसे इल्म ना इसे इल्म, कोई कह रहा है जी हम ठीक है, कोई कह रहा है अवाम आपस में झगड़ रही है, खून खराबा हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं अवाम क्या समझती है। एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बहस, लड़ाइयां, रिश्तेदार आपस से रिश्ते खत्म हो रहे हैं, अजीब मामला है जी। अल्लाह ताला जो है वो नापसंद फरमाते हैं बेकिलोकाल और बहस मुबाहसा को बगैर जरूरत के, और बगैर जरूरत किसी से सवाल करना और अज़ाअतिल माल, ये 3 चीजें अल्लाह ताला को नापसंद है। ज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं तुम्हारे लिए अपनी निशानियां, अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ। आगे है वल तकुन, चाहिए कि हो, मिनकुम, वल तकुन चाहिए कि हो, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक जमात, यादूना वो बुलाती रहे, इलल खैरी भलाई की तरफ, व यामुरूना और वो हुक्म दे, बिल मारूफी नेकी का, व यनहौना और वो रोकती रहे, अनिल मुनकरी बुराई से, उला व उलाइका और वही लोग, हुमुल मुफलिहून वही हैं फलाह पाने वाले। वला तकूनु और ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, तफर्रकू जिन्होंने फरका डाला, वक्त तलफू और इख्तलाफ किया, मिन बादी बाद इसके, माँ जाअहुमुल बैशिनात जब आगे उनके पास वाज़ेह निशानियाँ, व उलाइका वही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन दर्दनाक। पिछली जो 2 आयात थी इसमें मुसलमानों की इज्तिमाई फलाह और इस्लाह के 2 असूल बताए गए थे, जिनमें हर एक फर्द को एक खास अंदाज से अपनी इस्लाह की हदायत दी गई थी कि हर शख्स तकवा इख्तियार करे और अल्लाह ताला का जो सिलसिला इस्लाम है इसके साथ जुड़ा रहे। इस तरह इनफरादी इस्लाह के साथ साथ खुद ब खुद एक इज्तिमाई कुव्वत भी मुसलमानों को हासिल हो जाएगी। लेकिन इन 2 आयात, मज़कूरा 2 आयात में निज़ाम इस्लाह और इफ्लाह को बयान किया गया है कि मुसलमान अपने अमाल और इफ्लाह की इस्लाह पर बस ना करें, बल्कि अपने दूसरे भाइयों की इस्लाह की फिक्र भी साथ साथ रखें। इस सूरत से पूरी कौम की इस्लाह भी हो जाएगी और रबत इत्तेहाद जो है वो भी बाकी रहेगा, वो भी जो है वो खत्म नहीं होगा। और हर शख्स पर अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का फरीजा इस वक्त आयद होता है कि जब वो अपने सामने किसी मुनकर को देखते हुए, किसी को बुरे काम करते हुए देखे। मसलन एक शख्स देख रहा है कि कोई मुसलमान शराब पी रहा है या चोरी कर रहा है या किसी गैर औरत से मुजरमाना जो है वो तल्लुकात रख रहा है, तो इसके जिम्मा वाजिब होगा वो देखने वाले शख्स पर कि वो अपनी इस्तात और कुदरत के मुताबिक इसको रोके। और अगर इसके सामने ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ये फरीजा इसके जिम्मे नहीं है, बल्कि ये फर्ज इस्लामी हुकूमत का है कि मुजरम की तफ्तीश और तहकीक करके इसको सजा दे। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, यही बात है कि तुम में से एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाया करे, जो नेकी की तरफ बुलाए, नेक काम करने को कहे और बुरे कामों से रोके। वलतकुन उम्मतुन में निशात है कि एक जमात का वजूद होना जरूरी है। अगर कोई हुकूमत ये फरीजा अंजाम ना दे तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज होगा कि वो ऐसी जमात कायम करें, क्योंकि इनकी हयात मिली इस वक्त महफूज रहेगी जब तक ये जमात बाकी रहेगी। और आगे क्या है, यदऊना इलल खैर, यानी इस जमात का पहला इम्तियाजी खसूसी जो है काम वो ये होगा कि वो खैर की तरफ दावत दिया करें, यानी नेकी के कामों की तरफ उनका बुलाना मकसद आला होगा। खैर से मुराद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने इसकी तफसीर में इरशाद फरमाया कि खैर से मुराद कुरान और मेरी सुन्नत की इत्तबा है, और दूसरा उनका काम है कि वो बुरे कामों से रोके, उस जमात का ये मकसद हो। अब यहाँ पे एक बात समझ ली जाए कि बाज लोग तबलीग वालों को बुरा भला कहते हैं कि ये जो क्या बिस्तर उठाए यहाँ को चल रहे हैं वहां को चल रहे हैं, तो ये देखें कि वो अमल क्या कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने भी यही अमल किया, जैसे जैसे उन्होंने दीन सीखा वो उन्होंने अपनी बीवी बच्चे साथ लिए और निकल गए, कोई शाम को निकल गया, कोई इराक को निकल गया, कोई किसी तरफ को निकल गया, मुख्तलिफ इलाकों में जाके उन्होंने इस्लाम फैलाया। कभी अगर सारे
घरों से ना निकले होते तबलीग करने के लिए, तो सब सहाबा किराम की कब्रें जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में होती। किसी की बगदाद में है, किसी की दमिश्क में है, किसी की मिस्र में है, किसी की फिलिस्तीन में है। दीन पहुंचाया गया, और ये अल्लाह का हुक्म है कि एक ऐसी जमात बना के रखो। एक ऐसी जमात का होना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम, जिस दिन, तब यज्जु, सफेद होंगे, वजूहन, बास चेहरे, व तस्वद्दु, और स्याह होंगे, वजूहन, बास चेहरे। फामल लजीना, पस लेकिन वो लोग, इस वद्दत के स्याह होंगे, वजूहम, चेहरे उनके। कहा जाएगा, यहाँ पे जायद माना आएगा, कहा जाएगा अकफर तुम, क्या तुमने कुफर किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद, फजूकुल अजाब, बस तुम चखो अजाब, बीमा, इस वजह से, कुन तुम जो थे तुम तकफुरून, कुफर करते। वामल्लजीना, और लेकिन वो लोग अबियज़्ज़त के सफ़ेद होंगे, वजूहुम, चेहरे उनके, फफ़ी रहमतिल्लाहि, बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम वो, फ़ीहा, इसमें, खालिदून, रहने वाले होंगे। तिल का ये आयातुल्लाहि, आयात है अल्लाह ताला की, नतलू, हम पढ़ते हैं उसको, अलैका, आप पर, बिल हक़, के साथ हक़ के। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, युरीदु, इरादा करते, जुल्मन, जुल्म करने का, लिल आलमीन, जहान वालों पर। वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज, और जो ज़मीन में है, व इलल्लाहि, और अल्लाह ताला ही की तरफ, तुरजाउल उमूर, लौटते हैं तमाम काम। अब जो है ये आयात, इन आयात में बताया गया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ के चेहरे स्याह होंगे। इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि जो अहले ईमान हैं उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, और जो अहले बिद्दत हैं उनके चेहरे स्याह होंगे। और भी कई उलमाए किराम ने, सहाबाए किराम ने इसके ऊपर कौल लिखे हैं और बयान किए हैं, लेकिन जितने भी ये कौल हैं वो सब एक दूसरे के मुनाफी नहीं है, सबका हासिल एक ही है। इमाम करतबी ने भी अपनी तफसीर में आयत यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह के मुतालिक फरमाया कि मोमिनीन मुखलिसीन के चेहरे सफ़ेद होंगे, लेकिन इनके अलावा इन तमाम लोगों के चेहरे स्याह होंगे जिन्होंने दीन में तगय्युर और तब्दीली की, ख्वाह वो मुर्तद और काफिर हो गए, ख्वाह इनके दिलों में निफाक उन्होंने छुपाए रखा, इन सब के साथ यही मामला होगा। हजरत अकरमा फरमाते हैं कि सियाह चेहरे अहले किताब के इन लोगों के होंगे जो आपके पैदा होने से कबल तो आपकी तस्दीक करते थे, लेकिन जब आप मबूस हुए तो बजाय आपकी तायीद और नुसरत करने के उल्टा उन्होंने तकजीब शुरू कर दी, जुटला दिया। अब जिनके चेहरे सफेद होंगे, अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहे हैं फफी रहमतिल्लाह, कि वो अल्लाह की रहमत में होंगे, और इसके साथ ही फरमाया हम फीहा खालिदून, कि मोमिनीन अहल जो अल्लाह की रहमत में होंगे वो इनके लिए रहमत आर्जी नहीं होगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए होगी, और इनसे ये नेमत कभी सलब या कामना नहीं की जाएगी। लेकिन जो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनके लिए है फजूकुल अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, कि आज का अजाब हमारी तरफ से नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी कमाई है जो दुनिया में तुम अमल करते थे, क्योंकि दर हकीकत जन्नत, दोज़ख की नेमतें और मसाइब हमारे अमाल ही की बदली हुई सूरतें होंगी। और इसी बात पर मुतनब्बे करके आखिर में ये भी फरमा दिया वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर जुल्म का इरादा नहीं रखते। अजाब स्वाब जो कुछ भी है वो इंसान के अमाल के मुताबिक ही होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।